Hello, this is Shankar once again. And in this week, the video which I want to make is, and it is very much related to astrology. How can you use astrology to, make your objectives? कि आपको क्या करना चाहिए? What किन चीजों में आपको focus करना चाहिए? So it is actually you can today with the starting of the year, and let me wish everybody a very happy 2025. And with that, I want to tell you, if you want to start your year, you can use astrology and the planets in transits. The planets have a movement, and when the planets have the movement, they impact you and they impact your thinking. So now it is not that the planet Jupiter is so far and people argue it's so far, so how will it affect us? Everything as it is outside, so is inside. There is a Jupiter inside you, inside your brain. It's the galaxy system which is functioning, which we see, which I understand from my knowledge of quantum physics and whatever I've read. All that is happening in your brain, but it is fast. It's a super speed. It changes. So and they impact you. So it's a lot of people debunk this whole science, but yes, there is a missing link, and we need to understand missing links. As in all subjects of science, there are a lot of missing links. I mean, growth of cell in a child leads to his development. It is very important. Growth of cell in the case of an elderly human being fast leads to cancer. So, the same things is leading to two different things. One, in case of child, it is important for growth. The cells have to multiply fast for a child to grow. एक बच्चे को बढ़ने के लिए cell multiply करना पड़ेंगे. But वही cell when you are elderly and when you are at a particular age, अगर वो ज्यादा मल्टीप्लाई करता है आपको कैंसर हो जाता है. So it's the same activity but a different time. I mean, this is an example that just came to my mind. So so what I want to do in this particular video is to how can you set your objectives, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए fairly in terms of free will. Everybody, all of us have free will. We are not totally bound by destiny. Now, destiny only tells you a path. It tells you a रास्ता, एक सड़क बता देता है आपको. अब उस सड़क में आपको कैसे चलना है, आपको गिर के उठना है कि वहीं रोते रहना है, आगे बढ़ना है कि पहाड़ के सामने आके खड़े हो जाना है, कि पहाड़ को पार करना है, या खाली इमोशनल होना है. तो all that is within you. That is the free will, which is there importantly with you. So these things are very critical. Now, that is what I want to tell you is you can, with this transits, which I'm going to explain you can plan your, areas which you should focus on. And that's for everybody. But it will, of course, depend upon the chart or your Dasha Bhukti or, your nakshatras, your आपके कौन सा कारक पे ट्रांजिट कर रहा है, क्या सिचुएशन है, कितना नेगेटिव है, कितना पॉजिटिव है. बट दैट इज फ्रॉम योर चार्ट, एंड दैट इफ यू वांट टू discuss with me, or you want to have a consultation, or you have a query, you can WhatsApp a message to me on 9818733000. I again repeat, you can WhatsApp a message to me on 9818733000 for any consultation or query which you have on this subject of astrology as such. But these videos are indicators. They are not, I cannot tell you in about 30 minutes or 35 minutes everything what should be possible. But this is what the transits are going to happen to do. Now I'm going to talk only the long term transits, जो लंबे दौर पे ट्रांजिट चल रहे हैं. जैसे Jupiter will transit from May 1 to May 14, 2025 in Taurus. From May 1, 2024 to May 14, 2025. Till May 2025, Jupiter transits in Taurus. I mean, this year May, it transits in Taurus. Now, what does Taurus signify? Taurus is a fixed sign. Taurus signifies finance. Taurus signifies, that particular sign signifies family. It also signifies deep thinking. आप अंदर सोचते हैं, गहरा सोचिए. अगर आपके कोई प्रॉब्लम हुए हैं जो कि टेंशन हो गया है, यू हैव हैड इश्यूज, इमोशनल होकर आपने किसी को पैसा दे दिया है, या आपने कुछ इमोशनल में काम कर दिए हैं जो कि ठीक नहीं है, इट इज द टाइम टू थिंक प्रैक्टिकली.
अगर आप अपनी पूरी जोर से प्रैक्टिकली सोचते हैं ये 5-6 महीने हमको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए और लिखते हैं, एंड यू से दैट आफ्टर मे हम ये काम करेंगे, इट विल गोना हेल्प यू बिकॉज जुपिटर इज इन टॉरस. Taurus helps you in doing that. It is a sign which is a very earthly sign. जमीन से जुड़ा हुआ sign है. That is important. It is also a very important sign. It also, when Jupiter is in Taurus, I believe it is also important कि डे टू डे एक्टिविटी क्या करना चाहिए. एक होता है आप प्लान करते हैं हम पूरे साल में क्या करेंगे, बट एक अपना दिनचर्या बनाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपना एक those who have had a life which goes कि सुबह उठे, आज कुछ करा, कल कुछ करा, परसों कुछ करा, एक दिनचर्या बनाने के लिए इस समय अगर आप दिनचर्या बनाने की कोशिश करेंगे फॉर ए होल ईयर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. एंड दैट इज विद रिस्पेक्ट टू आपकी फैमिली के रिस्पेक्ट में, फाइनेंस के रिस्पेक्ट में, किसी ये 2-3 चीज़ों के रिस्पेक्ट में आप करिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, स्पेशली फैमिली एंड फाइनेंस के बीच में. प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे रोज़ हमें क्या करना चाहिए, रोज़ हमें ठीक है हमारे तनख्वाह 50,000 रुपए है, हमें इसको इस तरह खर्च करना चाहिए कि थोड़ा पैसा अपनी मदर को भेजना है, थोड़ा पैसा सेविंग करना है, थोड़ा पैसा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो यू डेली रूटीन बनाने के लिए दिस इज द बेस्ट ट्रांजिट विच आई हैव टोल्ड यू टिल May 25. इट इज द बेस्ट ट्रांजिट टू मेक अ डेली रूटीन फॉर योरसेल्फ कि डेली रूटीन आपको कैसा करना है. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिट वेयर you will see that you are in difficulties. If you are in difficulties in your profession, अगर आपके प्रोफेशन में डिफिकल्टीज आ रही हैं तो इस टाइम ये टाइम है कि उस पर आप घबराइए मत, क्योंकि ये टाइम खाली मई तक है. बिकॉज माई बिलीव इज दैट जुपिटर इज इन टॉरस, इट ऑल्सो विल इम्पैक्ट आपके विर्गो के साइन के और कैप्रिकॉर्न के साइन को. 2, 6, 10 ये 3 साइन आपके किसी और वीडियो में बताऊंगा कि हर प्लैनेट के साइंस में कैसे फंक्शन करते हैं, बट लेट मी टेक इट हियर ओनली. जुपिटर जो होगा वो टॉरस में जब होगा तो विर्गो को, दैट इज आपकी कन्या राशि को, और कैप्रिकॉर्न मकर राशि को इफेक्ट करता है. नाउ जुपिटर इज डेबिलिटेटेड इन कैप्रिकॉर्न, मकर में डेबिलिटेटेड नीच का है. तो हो सकता है कि आपको अपने जॉब में सेटिस्फैक्शन ना मिल रहा हो कि क्या करूं क्या नहीं करूं. आपको लग रहा है कि आधा घड़ा भरा है, आधा घड़ा खाली है. मेरा हर आदमी को एक कश्मकश में है. तो ये समय, दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन प्लान योर प्रोफेशन. डोंट लीव इट, don't get disgusted, don't be frustrated. You have to plan it out कि what you need to do next, how you need to plan to make it better, because a better time is going to come after May. I can see that because then Jupiter transits into the next sign. So this is the time for you to plan. If your profession has been negative, आपका जॉब में satisfaction नहीं है, तो this is the time to plan. So Jupiter at this moment will give you expansion also in फैमिली एंड फाइनेंस. ये तो एक पॉजिटिव चीज करेगा, एक्सपेंशन देगा पॉजिटिव. आपके दिनचर्या भी अच्छा करेगा. आपका प्रोफेशन में अगर खराबी है तो आपको उसको प्लानिंग का टाइम है. तो जुपिटर इन टॉरस विच इज देयर फॉर अबाउट फ्रॉम May 1 to May 14, 2025 और 129 130 दिन बचे हुए हैं. तो ये 130 दिन में कृपया यूज इट टू थिंक, to plan. And plan what? Plan family, plan things of finance, plan things of your daily routine, and plan things of your profession. यहाँ पर ये 3-5 चीजों की आप प्लानिंग करिएगा. Even if you're doing very well, it will help you, and even if you're doing bad, it will help you. So this is how you can use the planets to your daily advantage. That is what is important. Now next thing is, एक Jupiter जो होता है will become also retrograde. Retrograde planet is a planet in Taurus only from October 9, 2024 to February 4, 2025. तो ये अभी 30 दिन बचे हुए हैं. आज से 30 दिन बचे हुए हैं. October 9, 2024 to February 4, 2025 पूरा ट्रांजिट का लेंथ 118 दिन का है और अबाउट 30 दिन 32 दिन अभी बचे हुए हैं इसके. फॉर February 4, 2025 about 30 days are left for the same. Now whenever Jupiter becomes retrograde in this planet,
जुपिटर जो होता है, जब भी प्लैनेट कोई रेट्रोगेट होता है, हर प्लैनेट एक राजा के कंट्रोल में होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू रेट्रोगेट आल्सो हियर। हर आदमी राजा के कंट्रोल में होता है, एक आदमी राजा के वर्चस्व से काम करता है। जब प्लैनेट रेट्रोगेट होता है तो वो राजा का जो क्षेत्र है, जो उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उससे बाहर चला जाता है। तो जब वो बाहर चला जाता है, इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग कि मैं तो राजा के अंडर हुई नहीं, अब मेरे को कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो वो प्लैनेट या तो बहुत बड़ा गुंडा बन जाता है या वो प्लैनेट बहुत अच्छा बन जाता है। तो जुपिटर इन दिस गोस बिकम्स रेट्रोगेट, 30 days आर लेफ्ट। सो अगर आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपके फैमिली में प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपके बच्चों में प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो रहा है, आपको फॉर्च्यून इज नॉट गेटिंग गुड, योर गेन्स आर नॉट हैपनिंग, एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग, दीज आर थिंग्स जुपिटर गवर्न्स। इन चीजों में इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स, इश्यूज, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ये जो टाइम अभी खाली 30 दिन बचा, इसमें आप एक्शन मत लीजिए। डोंट टेक एक्शन, डोंट बी रिएक्टिव। इट इज द टाइम टू थिंक कि पहले आपने क्या करा था, इससे ये गलतियां आज हो रही। दिस इज द टाइम टू गेट बैक, बिकॉज whenever Jupiter will become retrograde, it becomes powerful. Now depends on your horoscope whether it is positive or negative. But let me assume Jupiter जो एक कर्ता तो होता है जुपिटर का, वो होता है फैमिली का, फाइनेंस का, बच्चों का, शादी का, या फॉर्च्यून का, या गेन्स का। तो ये 5 चीजें देखता है। तो ये जो 30 दिन बचे हैं, इनमें आप अभी अगर कोई आप इन चीजों में प्रॉब्लम हुई है तो उसको अभी आप, इट्स माय व्यू, इट्स एज एन एस्ट्रोलॉजी एंड माय लिमिटेड नॉलेज, उसको आप सेटल करने की कोशिश मत करिए। उसको आप मतलब ठीक, उसको आप ये सोचिए कि आपने क्या गलत करा था जिससे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, बिकॉज ओनली 30 days आर लेफ्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन दिस 30 days यू कैन प्लान इफ इन दीज एस्पेक्ट्स यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स। जैसे आपका बच्चा परेशान कर रहा है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, फॉर्च्यून में आपको मिलने वाला था कुछ पैसा, वो नहीं मिला, आपको कुछ पैसे का गेन होने वाला था, वो नहीं हुआ। सो यू डोंट रिएक्ट, उस पर रिएक्ट मत करिए, बट यू प्लान व्हाट यू हैव टू डू। थिंक, पीछे का सोचिए। रेट्रोग्रेड मींस पीछे, तो आप पीछे का सोचिए, हमें क्या करना चाहिए, हमने क्या नहीं करा और हमने क्या गलती करी। सो दिस विल ऑल्सो बिकम वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन प्लानिंग। सो दिस ऑल्सो adds to the issue, but whenever the retrograde planet is there, issues become fierce. So आजकल स्पेशली जिनका भी चंद्रमा टॉरस में है, मतलब चंद्रमा वृषभ में है, मून जिनकी राशि टॉरस है, उनके आजकल टाइम बहुत खराब चल रहा होगा। इट वुड बी अ बैड टाइम बिकॉज Jupiter is whenever Jupiter becomes retrograde in your particular rashi or in your moon sign, it creates problems. So I am sure seeing this video, write down in the comment also, are you having problems? Those who have Taurus राशि या वृषभ राशि, और आजकल उनको कहीं ना कहीं इन चीजों में, फैमिली में, फाइनेंस में, बच्चों में, फॉर्च्यून में और गेन्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो। और भयंकर प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम तो लाइफ में चलती रहता है, मतलब जितना आप सोचते हैं उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा हो। तो इफ इट इज देयर, डू राइट इन द कमेंट टू मी, और you can write to me on my email also. So you will do write to me. तो इसमें this is the time not to be reactive, but to just bear it. उसको निकालना है, अपने को समय को निकालना है. That is important. So this is what is about Jupiter. Now let us take Mars. What is Mars? Mars is the commander in chief. वो आपके जनरल है, आपके बॉडी का सोल्जर है. It is the soldier. It is the person which executes. सूर्य ने प्लान कर लिया, सन ने कि हमें ये करना है, चंद्रमा ने ये कहा कि हमें पैसा कमाना है, मरकुरी ने बुद्धि आपको दी, सैटर्न ने आपको तराजू दे दिया कि आप एक तरफ इतना रखोगे दूसरी तरफ इतना, सब बता दिया. मगर वो सब करने का जो है, everything which has to be done has to be executed. The person who has to order fire is Mars. Mars tells you to fire. Mars is your guts. बिना मंगल के आप कुछ नहीं कर सकते. लोग मंगल से डरते, मगर मंगल का नाम तो मंगल है ना. मार्स इज नॉट मंगल. मंगल मीन्स गुड, मंगल करता है. तभी a day for Tuesday is Hanuman ji. I mean, it is not that Hanuman ji is existing and not existing, that I don't want to argue. But look at the aspects of Hanuman ji. वो मंगल ही करते हैं.
हनुमान जी ने अच्छा ही करा, मतलब रामचंद्र जी के लिए हर जगह अच्छा ही करा, हर जगह उन्होंने हर चीज, हर आदमी को ही वाज हेल्पफुल. सो अ स्ट्रॉन्ग मार्स makes you equivalent to Hanuman in terms of execution. It executes the orders, but it executes the order positively or negatively will depend on the other planets. But Mars के बिना हॉरोस्कोप में कुछ नहीं होता है. तो Mars जो है आपका, हम लोग सबका, मतलब in the cosmos, in the cosmic energy, October 20, 2024 से January 21, 2025, मतलब पिछले 90-93 दिन से डेबिलिटेटेड चल रहे हैं, नीच के चल रहे हैं कर्क में. एंड अभी 16 दिन बचे हुए हैं, 16 days are left. So this has been a time where Jupiter was also retrograde in Taurus and Mars is also retrograde in Cancer. अब मार्स जो है कमांडर इन चीफ है, अपने नीच के घर में बैठा हुआ है. मतलब मार्स जो है फिर वो जनरल नहीं होता. जब मार्स डेबिलिटेटेड होता है, इट्स नॉट बैड, बट व्हेन मार्स इज डेबिलिटेटेड, व्हाट हैपेंस इज दैट, ये समझ लीजिए एक जनरल को आपने बोला है कि आप, तुम्हारा आज की ड्यूटी है तुम खाना बनाओ और 4 औरतों के बीच में बैठ के यू हैव टू कुक फूड, यू हैव टू मेक फूड एंड यू आर विद 4 वुमेन, बट यू आर अ जनरल. तो जनरल क्या करेगा, वो खाना कैसे बनाएगा? वो प्यार से भी बात करेगा, कभी गुस्सा भी होगा, कभी चीज जोर से भी उठाएगा. तो द मार्स व्हिच इज देयर टुडे, जो डेबिलिटेटेड मार्स चल रहा है, वो मंगल ऐसा है जो कि आपको अंदर से शक्ति नहीं दे रहा है. आपको मतलब इट इज नॉट गिविंग यू द एनर्जी टू एक्ट वेरी फास्ट, इट इज नॉट गिविंग यू द एनर्जी टू कम टू अ कंक्लूजन. डरपोक बनाता है, चाहे आप कितने भी स्ट्रॉन्ग आदमी हो, बिकॉज दैट विल डिपेंड ऑन योर नेटल हॉरोस्कोप. हाउ योर नेटल हॉरोस्कोप इज, उस पर डिपेंड करेगा. So that I do not know about that, but a debilitated Mars which is there at the moment, जो खाली भी 16 दिन बचे हैं, which will make you function in a way which is scary. आपको डर लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं. स्पेशली इसमें आप ये देखिएगा, लेट मी नो, जिनके भी कर्क राशि है, चंद्रमा जिनका कर्क है, राशि कर्क है, चंद्रमा अपने घर में बैठा हुआ है, कर्क राशि वाले चंद्रमा, वो सारे आजकल डिस्टर्ब चल रहे होंगे. पिछले 90 दिन से डिस्टर्ब चल रहे होंगे, काम चल नहीं रहा होगा, चीजें हो नहीं रही होंगी, इश्यूज हो रहे होंगे. सो यू हैव टू ओनली बियर फॉर 16 days. आफ्टर 16 days थिंग्स विल बी बेटर. दिस इज अ स्पेसिफिक थिंग व्हिच आई हैव टोल्ड यू फॉर कर्क राशि. नाउ व्हेन वी टॉक जनरली, this is now the time after 16 days you can plan thing in a very aggressive way. This is the time when जो आपने जुपिटर का मैंने आपको पहले बताया है, जो चीजें आपने सोची है बड़ी बड़ी, गुरु बताता है बड़ी बड़ी क्या चीजें सोची है आपने. गुरु टॉरस में था तो मई तक आपने फैमिली, फाइनेंस, ये सब चीजें मैंने बोला, इन सब चीजें मैंने लिखी है. नाउ आफ्टर 16 days मार्स विल स्टार्ट, यू कैन पुट द एनर्जी ऑफ मार्स, मतलब आप कुछ एक्शंस ले सकते हैं जो कि आपको ठीक होंगे और सही आएंगे. आपका टाइम खराब चल रहा, ठीक नहीं चल रहा था, नेगेटिव चल रहा था, सो एंड जुपिटर से आपको खाका बन गया था क्या हो रहा है. सो दिस मार्स नाउ आफ्टर 16 days आप जो एक्शंस लीजिएगा, कुछ चीज आपकी जो खराब हो रही थी वो ठीक होना शुरू होंगी. जनरली दैट इज फॉर एवरीबॉडी, बट टिल the next 16 days Mars debilitated in Cancer means थोड़ी सी आपकी एनर्जी will be down, you will not be all of us जितनी है उससे थोड़ी कम रहेगी, थोड़ा मन में प्रॉब्लम रहेगा, मगर जिनके चंद्रमा कर्क में उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होगा. ये भी आप लिख के दीजिएगा, तो इस तरह हमको देखना पड़ेगा. Then what happens is from October 8, 24 to January 12, 2025 Mars comes in Pushya Rashi. Mars is in Cancer but in Pushya Rashi, and this is for 78 days. 78 days के लिए था, अब शायद 7 दिन बचे होंगे. October 28 to January 12, 2025. This 7 days are left. Now in this Pushya राशि जो है वो सबसे अच्छी राशि मानी जाती है. बहुत ही मतलब पुष्य राशि को बोलते हैं, बहुत ही महत्व दिया गया है. तो ये जो 7 दिन मार्स है ये शनि के घर में है. जो पुष्य राशि का मालिक होता है, पुष्य नक्षत्र का जो मालिक होता है, उसका जो अधिपति होता है, लॉर्ड इज शनि.
सो मार्स एंड शनि फॉर्म अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यहाँ पर जो शनि है वो मंगल को बताता है, या मंगल शनि एक दूसरे से बात करके बताते हैं किस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो अगेन आई रिपीट दैट इफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम द लास्ट सो मेनी डेज, आई मीन पिछले समझ लो 90 डेज से आपको प्रॉब्लम चल रहे थे, इशू चल रहे, this is the time for the next 7-10 days when you can plan positively on what actions, क्या actions ले सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। और अगर आपने बैठ के धैर्य के साथ, ये शनि धैर्य का प्लैनेट है, शनि है सोचने का प्लैनेट है, शनि लिखने का प्लैनेट है, तो अगर आपने ये 15-16 दिन में जो 7 दिन बचे हैं खाली मेरे का, इसमें अगर आपने बैठ के अच्छी तरह लिख लिया कि आपको क्या करना है, rather than get being disturbed, किसी का दिस इज आई एम सेइंग, क्योंकि किसी का नेटल चार्ट में मूड डिस्टर्ब लगा तो डिस्टर्ब नहीं रहेगा, तो वो आदमी डिस्टर्बेंस से मेरे वीडियो का सुन रहा है, डिस्टर्ब हो अगर है भी और कहता है यार कुछ नहीं होने वाला, बैठ जाए 1 मिनट, कागज पेंसिल ले ले एंड प्लान एक्शन, व्हाट एक्शन हैज टू बी टेकन आफ्टर 7 डेज। इन 7 दिन में जो आपने प्लान करेंगे और जो आपकी बुद्धि चलेगी जिस तरह से, और जो एक्शंस प्लान करेंगे उसका रिजल्ट्स आपको ज्यादातर पॉजिटिव ही मिलेगा, इट विल बी पॉजिटिव ओनली। So this is what is about Mars. The next most important planet today in Kali Yuga is Rahu. राहु जो है नवंबर 10 से जनवरी 12 2025, from November 10 2024 to January 12 2025 is in Uttarabhadra nakshatra, and this is for 63 days. Now whenever Rahu is in Uttarabhadra nakshatra, what happens is that हमें क्या है, हमें ये देखना है कि हम क्या चीज अलग कर सकते हैं। एक आपकी जो एक रेस्टलेसनेस है, जो आपकी एक मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं वो भी करना चाहता हूँ, और मतलब मैं you don't know what to do, and the energy is like आपके अंदर बहुत, जो लोग रेस्टलेस इस टाइम में है और अपने को समझ में नहीं आ रहा है क्या नहीं करना है, उनके लिए, और दूसरे लोग जो स्पिरिचुअल है, जिसको अंदर मतलब अंदर मेडिटेट करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं क्या नहीं करें, क्या क्या करना चाहिए, उसको उन लोगों को ये है कि आई फील दे शुड, दिस इज द टाइम दैट ये जो रेस्टलेस एनर्जी आपको इसको पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करिए। दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन ट्रांसफॉर्म दिस रेस्टलेस एनर्जी इनटू अ पॉजिटिव वे एंड यूज इट इन अ वेरी कंस्ट्रक्टिव मैनर वेयर आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। सो दिस नवंबर 10 टू जनवरी 12 2025 63 डेज का है, 7 ही दिन बचे हैं इसके लिए। तो इसमें मेरा यही है जो मैंने आपके मंगल के लिए कहा था, यही हमें राहु भी बता रहा है कि भाई अब जो है डोंट बी रेस्टलेस, प्लान थिंग्स। और जुपिटर आपको फायदा देगा, जुपिटर तो एक्सपेंशन अच्छा प्लान होता है। तो मंगल और राहु दोनों हमें यही बता रहे हैं कि अब भैया तुम बैठ के एक बार सोच लो, अपने आप को शांत कर लो, जो भी चीजें, जो भी प्रॉब्लम्स है उनको लिख लो, उनको समझ लो, उनको क्लियर करके अब you go ahead and make a movement towards that. So that is what Rahu is also telling us, and that is what we should do. केतु जो है वो जाहिर है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में है, उसके भी 7 दिन बचे हैं, और राहु और केतु एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। केतु इस समय ऐसा है कि अगर आपने राहु के एनर्जीज को अपना, जैसे मैंने बोला है, उसको सोच के जो रेस्टलेसनेस है या नेगेटिविटीज है, दैट वो ज्यादा जरूरी, वो नेगेटिव या पॉजिटिविटीज है उनको ज्यादा अच्छा कर लो, उनको अच्छा कर लीजिएगा, देन केतु विल टेक यू टू, केतु प्रोमिसेस यू द रिजल्ट्स। केतु सेज कि अगर तुम ठीक हो और सच्चे हो तो हम तुम्हें सच्चाई की तरफ ले जाएंगे एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सो दैट इज व्हाट केतु टेल्स यू इन उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। नाउ मार्स, अगेन आई कम टू मार्स, मंगल जो है वो रेट्रोगेट होता है दिसंबर 6 2024 से फरवरी 24 2025। दिसंबर 6 2024 से फरवरी 2025 तक मंगल रेट्रोगेट होता है। इसके अभी 50 दिन बचे हुए हैं।
80 दिन में से 50 दिन बचे हुए हैं। यहाँ अगेन सी इट स्ट्रेट होके फिर अगेन इट बिकम्स रेट्रोग्रेड। हियर अगेन जिनकी राशि कर्क है उनके लिए ये समय बहुत ही उथल पुथल का टाइम है। सो बी केयरफुल फॉर दैट पर्टिकुलर राशि एंड ऑल्सो फॉर राशिज हु आर इन स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। इसमें क्या होगा, मार्स जो होता है इस समय ऐसा होता है दैट योर एनर्जी बिकम सच दैट यू बिकम इनटू थिंकिंग मोड। आप एक सोचने लगते हैं। मार्स जनरल जो होता है उसका काम होता है शूट करना। इस टाइम होता है मार्स होता है यार, मतलब वो जो स्पिरिट जो एक सोल्जर की होती है खत्म हो जाती है। सो दिस इज द टाइम द प्लैनेट्स आर टेलिंग यू हम ऐसे हैं। So there are a lot of other planets who are also working. तो this is the time का अगर आप ऐसा हो रहा है कि आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आप करने का मन नहीं हो रहा, मूड नहीं हो रहा, it is the time for you to get back. नहीं यार, हमें तो हम वॉक करते थे रोज, हमने वॉकिंग छोड़ दी थी, हम वॉकिंग शुरू करते हैं। So this is the time when you have been deceived by a friend. चलो यार छोड़ो, उसने हमको डिसीव कर दिया, forget it. उस पर रोना नहीं। किसी ने आपको धोखा दे दिया, धोखा होता ही रहता है। किसी ने आपको भाई भाई में लड़ाई हो गई, छोड़ो, आगे बढ़ो। सो दैट इज व्हाट इज मार्स रेट्रोग्रेड सेज। और इट ऑल्सो टेल्स यू कि भाई पीछे के बात को मत करो, जो कि हमारी गीता में फिलॉसफी है, जो हो गया सो हो गया। पास्ट इज पास्ट, दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड प्लान बिटवीन December 6 to February 5, February 24, 2025। 50 दिन है। ये 50 दिन में आप ये प्लान जरूर कर लीजिए कि हाउ विल यू यूज योर सेल्फ आफ्टर 24 फरवरी के बाद आप अपने आप को कैसे यूज करिएगा। स्पेशली जिनका लग्न, जिनकी राशि कर्क है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मन बहुत ही उनके विचलित हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि यू शुड डोंट थिंक, पीछे का मत सोचिए। ये इस तरह का एग्जाम्पल दूं, जैसे मंगल इसमें क्या करता है। मंगल जैसे आपको कहीं जाना है तो आपने कहा चलो भाई मेरे को जाना है, और आपने गए, आपने गाड़ी की चाबी ली, गाड़ी अपनी चाबी खोली, आधी दूर गए, फिर आपने सोचा अरे भाई हम तो जिस काम के लिए जाना था वो डॉक्यूमेंट था वो तो लाने ही भूल गए। तो अब दो चीजें हैं, या तो वो वापस जाइए, डॉक्यूमेंट लेके आइए और भागिए, या आप फोन करके किसी को वापस बुलाइए, और या आप कहिए हाँ छोड़ो यार हम काम ही नहीं करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ मार्स व्हेन इट इज इन दिस स्टेट, तो आदमी यही होता है, होगा उसके साथ यही कि वो जिस वर्क फॉर विच ही इज गोइंग, दैट ही मे गो बट ही मे फॉरगेट द डॉक्यूमेंट, ही मे टेक द कीज, गाड़ी चला रहा, आदि तो डॉक्यूमेंट। सो इट इज नॉट दैट यू से हम ये काम नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट इज दैट इन दिस ट्रांजिट यू शुड go back, get the document, drive faster, drive better and उस काम को करने की कोशिश करिए। तो जिन लोगों का अभी जो मार्च जो ये 50 दिन आ गए फ्रॉम December 6 to February 4, 50 दिन बचे हैं, 50 days are left. It is important that again I repeat, please if your energy is getting depleted, ऐसे जिस तरह मैं बता रहा हूँ वो चीजें हो रही हैं, अब हर एस्पेक्ट में हो सकती हैं। मार्स इज योर सेल्फ, आदमी हर काम खुद करता है, तो हर एरिया ऑफ लाइफ में जब खुद आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो हर एरिया में आपके इश्यूज हो सकते हैं। दैट विल डिपेंड ऑन योर हॉरोस्कोप एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर थिंग्स इन हॉरोस्कोप। मगर ये ऐसा अगर हो रहा है तो आपसे मेरी गुजारिश है, इट इज अ टाइम फॉर यू नॉट टू लेट द थिंग गो, कि छोड़ो का एटीट्यूड देना चाहिए। आई विल डू, मैं करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं गिर गया हूं कोई बात नहीं, आई विल स्टैंड अप एंड आई विल वॉक। That is important, which you have to do. Then from December 13 to March 19, 2025, December 23, 2024 से मार्च 19, 2025, उसमें जो है ये जो टाइम पीरियड आपको बड़ा टाइम पीरियड दिया है, मगर ये एक टाइम पीरियड है जबकि गुरु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में आता है। Now Guru, when it comes in the Rohini Nakshatra, it is an excellent time. Rohini is the nakshatra of जिसको चंद्रमा के 27 नक्षत्र है। चंद्रमा की we say the 27 wives. The wife he loves the most is Rohini. So when Jupiter is in the Rohini Nakshatra from this period, December 23 to March 19, 2025, this is about 86 days. There 73 days are left.
तो दिसंबर 23 से मार्च 19 तक जो पीरियड है, जुपिटर इज इन द बेस्ट, इट इज अबंडेंस। इसमें आप जो कार्य करना चाहते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, प्लीज गो अहेड। एंड जुपिटर इज 50% ऑफ योर हॉरोस्कोप, बिकॉज फैमिली है, फाइनेंस है, भाई है, बच्चा है, you know, your fortune is there, your gains are there, all is by Jupiter. So this is the planet when, if you are able to control your Mars, that which I have told you, the energy of Mars, you are able to make it positive. And Jupiter आपको कह रहा है मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। जुपिटर गुरु है, विजडम है, जो बताता है कि ठीक है, हम ये सब चीजों के राजा है, और आपका जो मंगल है वो उसको आप ठीक कर लेते हैं इस टाइम बाय what I'm trying to explain you, कि मंगल, मार्स को आप डोंट अपने एनर्जी, डेबिलिटेटेड एनर्जी है, डेबिलिटेट हो रही है आपकी एनर्जी, उसको आप थोड़ा पॉजिटिव करिए। एंड दिस इज द टाइम व्हेन जुपिटर इज गुड, सो योर इश्यूज व्हिच यू हैव विल बिकम पॉजिटिव। आपके लाइफ के जितने भी लाइव इश्यूज है, धन नहीं होता, जुपिटर धन का बहुत बड़ा कारक नहीं होता है, मगर बाकी चीजों के लिए, जैसे चलता हुआ आपका फैमिली में इश्यूज है, फाइनेंस में इश्यूज है, बच्चे में इश्यूज है, फॉर्च्यून में इश्यूज है, सो दिस इज द टाइम व्हेन यू शुड एक्चुअली, इवन इफ यू आर फीलिंग लो, यू शुड ट्राई टू मतलब उसको अपने आप को ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, दे विल गेट सॉल्व। और जिनका अच्छा चल रहा है वो और अच्छा करेंगे तो उनका काम हो जाएगा। तो ये गोल्डन पीरियड है, दिसंबर 23 टू मार्च 19, 73 days are there, use it. I would request everybody to use this period for all these things. Saturn. Now Saturn is a karmic planet, और in लाल किताब and in my Nadi system, Saturn के दो agents होते हैं। He has got two agents, राहु and केतु। ये जितना कर्म का जो होता है, जो कर्म का निचोड़ है, वो Saturn है, बट Saturn खुद कुछ नहीं करता है। Saturn knows what to do. It gets the things done through Rahu and Ketu in the present Kali Yuga concept, which I will discuss in some other video sometime. And December 27, 24 to February 2, 2025, जिसके अभी 28 दिन लगे हैं, Saturn is in Purvabhadra Nakshatra. What is important is in this nakshatra, Saturn tends to do things which are again not correct, मतलब ऐसी चीजें कराएगा जो कि आपको which may harm you. तो my advice is, जो 28 दिन बचे हैं, अगर आप अपने वर्क में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव कर रहे हैं, मत करिए। Put discipline in yourself. नहीं तो this Saturn will make you fearful, आपको डरा देगा। So what is important in this 28 days since is left, I would request that during this period of December 27, 24 to February 2, 2025, now for February 2 only 28 days are left, it is important that आप जो भी कर रहे हो छोड़िए। Now since 28 days are left, get disciplined. If you get disciplined, this Saturn is going to be very good in Purvabhadra Nakshatra. Then we come to a very important conjunction which happens. बीच में planets आपस में मिलते भी हैं। December 29 to January 28, 2025, 30 days, of which about 23 days are left. There is a conjunction of Saturn and Venus. Saturn and Venus conjunction means love. So in case of love, you can enjoy yourself. Beauty, enjoy yourself. Luxuries, enjoy yourself. तो ये जो आपके 23 दिन बचे हैं, इनमें आपको ये है, if you love a girl, उसको आप बोल दीजिए I love you. Because this is the time when you say I love you, and whenever Saturn and Venus are in conjunction, I've seen, Saturn जो होता है वो planet ऐसा होता है, मैंने बोल दिया तो बोल दिया. It is a planet which is a planet of karma. It is a planet which does not do negative. It is a planet, क्योंकि disciplined planet है, so whenever Saturn and Venus are together, and they're good friends, Saturn and Venus are good friends. So whenever they're together, this is a time that if you are in a relationship and you want to tell the person concerned that I love you, आप कह दीजिए I want to marry you, I want to propose you, that will last.
लंबा उसका फर्क पड़ेगा। ये दिस इज ऑल्सो अ टाइम when it is a good time to earn money. So if you are able to handle your Mars energy in the 23 days which are left, and you are able to also control the Jupiter aspects for some time, then in these 23 days you will be able to amass wealth. आप पैसा कमा सकते हैं। So this is what the transits do in आपका जो लाइफ का एक होता है ना, हम लोग शुरू करते हैं क्या करना चाहिए, तो इस साल अपना कैसा बनाएंगे, तो इन ट्रांजिट्स के हिसाब से बना सकते हैं। तो बिटवीन दिस 23 डेज लेफ्ट फ्रॉम दिसंबर 29, 24 टू जनवरी 28, 2025, जो 23 दिन बचे हैं, इनमें यू कैन एक्चुअली अर्न मनी, यू कैन एक्चुअली गो एंड प्रपोज टू समबडी, एंड दैट विल बी अ लास्टिंग रिलेशनशिप। जनवरी 12, 2025 to March 16, 2025, Rahu is in Uttarabhadra Nakshatra. Rahu in Uttarabhadra Nakshatra, and this is 63 days, 63 days. Now, this Rahu in 63 days is a positive Rahu. ये राहु ऐसा है कि सोचेगा यार आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। अगर आप साइंटिस्ट हैं, यू विल बी थिंकिंग मैं क्या करूं कि अच्छा हो जाए। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आप बोलोगे मैं क्या और क्या। राहु एक ऐसा प्लैनेट है, इट इज योर हेड, इट आपको अलग सोचने की क्षमता देता है, इट मेक्स यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सो दिस इज द टाइम व्हेन इट मेक यू टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एंड यू कैन बिकम अ चरिश्मैटिक पर्सनालिटी। एक आपका जो चरिश्मा है दैट वुड कम इफ यू यूज दिस एनर्जी at the moment in Rahu and keep on correlating it with the Mars, Jupiter, Saturn I have already explained you. तो उनके जो टाइम में, जो टाइम फ्रेम में आता है, अगर आप उस टाइम में, मैंने आपको बोला था कि मार्स इज वीक, सो अपनी मार्स वाली एनर्जी बढ़ाइए, एंड राहु फॉर दिस period of January 12, 2025 to 23 to March 16, 2025 is absolutely excellent. When it is in उत्तरा भद्रावत, मतलब जो भी उसने गलत नाच करा था, तांडव करा था, पूर्व भद्र में तांडव करता है, उत्तर भद्र में तांडव के बाद जो शांति होती है उसकी प्रतीक होता है। दैट इज व्हाट इट सेज। सो तो आपका जो नेम है, फेम है, आप कुछ चीज अलग करना चाहते हैं, कुछ चीज बड़ा करना चाहते हैं, आपका यू गॉट समथिंग वेयर यू वांट टू अर्न करोड्स, यू नो पॉजिटिव वे। द राहु is the planet which makes you what you are. So this is the time when अपने जो पुराना जो पॉजिटिव जितनी चीजें करी हैं उनको यूज करिए। अपने दोस्तों जो भी है, जहां भी है, राहु will give you the charisma. So that is important. From January 12 to April 12, January 12, 2025 to April 12, 2025, Mars is in Punarvasu Nakshatra. When Mars is in Punarvasu Nakshatra, I may have told you it's retrograde. So you have to also keep on seeing this, keep on telling it. ये दिन 90 दिन का टाइम है जब मार्स पुनर्वासु नक्षत्र में होता है, तो जुपिटर से गवर्न होता है। तो जुपिटर एंड मंगल टुगेदर आर वेरी गुड। It is a planet of expansion at that time. I mean, even if the Mars is, you have to check what I told you about Mars at that time, even if Mars is retrograde at that time, but during this time of January 12 to April 24, इसके अंदर potential है, इस 90 दिन के अंदर, जिसके अंदर you can actually do good things. It may not be very good for relationships. It may not be very good for, अगर आप if you are into a divorce case और चल रहा है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, but otherwise it जो मार्स की एनर्जी कम होती है, इस ये जो 190 दिन इसमें ज्यादा हो जाएगी। यू विल बी पैशनेट, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। चलो करते हैं यार, शुरू करते हैं काम। ये जो टाइम है, इट इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट वर्क फ्रॉम जनवरी 12 to April 12 if you're planning, if you're listening to these transits. Because what I'm trying to tell you is how astrology can be used आपके लाइफ को अच्छा करने के लिए और आपको प्लान करने के लिए। हाउ यू प्लान, जैसे कि एक कंपनी प्लान करती है कि हम इस साल क्या करेंगे, आप अपने घर में प्लान करते हैं, आप बिजनेस प्लान करते हैं, यू यूज टूल्स। सो एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो अ टूल by which you can plan. And I again say that this 90 days of January 12 to April 12, you plan things where you require strength and passion.
जहां आपको शक्ति चाहिए और आपको पैशन चाहिए। January 12 to March 16, 25, 63 days is also Ketu is in Uttara Phalguni. Now here, जो लोग spirituality में उनके लिए तो बहुत अच्छा है, but those who are not into spirituality and want to go towards spirituality, जो spiritual नहीं है मगर अपने आप को सोचने लगते हैं चलो हम भगवान की तरफ जाते हैं, इस साधु से मिलते हैं, ये हम किताब पढ़ते हैं, ये अध्यात्म देखते हैं, उनको इल्यूजन होगा। So my advice is that during this period of January 12 to March 16, 2020, 63 days, if you are a spiritual person, आप अपनी spirituality बढ़ाइए। Spirituality is not science and science is not spirituality. दोनों अलग चीज है। साइंस के अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं डाल सकते, स्पिरिचुअलिटी के अंदर साइंस नहीं डाल सकते। स्पिरिचुअल इज समथिंग जो आपका अंदर है। तो अगर आपके अध्यात्म है, यू हैव स्पिरिचुअलिटी इन यू, इट इज नॉट दैट यू रीड अ पर्टिकुलर बुक एवरी डे यू बिकम स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी इज योर इनर, आपका अंदर की ताकत है, वो स्पिरिचुअलिटी है। इफ इट इज देयर, इट इज वेरी गुड, इट इज अ टाइम टू गेट लिबरेटेड। आपको यू नो समझ में आ जाएगा है क्या। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर बीइंग फोर्स्ड बाय अदर एनर्जीज टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जैसे आप परेशान हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, आपको कोई कह रहा है कि ये कर दो, वो कर दो, इस मंदिर में चले जाओ, और उसके कारण आप भाग रहे हैं, तो इट विल बी एन इल्यूजन। सो इफ यू आर गेटिंग योरसेल्फ immersed in spirituality during this time or going towards a spiritual path because somebody else is saying, then it will be an illusion. And this will be from January 12 to March 16, 63 days. So that is how you have to plan yourself. From January 24 to February 11, 2025, Mercury and Sun are in conjunction. तो जनवरी 12 टू फरवरी 11, 18 दिन का टाइम है जहां मरकुरी और सन कंजंक्शन में है। जब मरकुरी सन कंजंक्शन में होता है, ये टाइम ऐसा है कि अगर आपका मार्स ठीक नहीं है, ये प्रॉब्लम्स भी है, तो इट इज अ टाइम ऑफ पावर, जहां पर आप पावरफुल चीजें, जो डिसीजंस जिनमें कि आपको पावर के डिसीजंस लेना, आप ले सकते हैं, और क्रिएटिविटी, नई चीजें करने की क्षमता रख सकते हैं। यू कैन बी, यू नो, it's a time when you can exert yourself, exert your power and also think new things, नई चीजें सोच सकते हैं। January 18 to May 18, 2025 is a period where Shukra and Rahu are in conjunction. Venus and Rahu are in conjunction. Now Venus is the planet of Kali Yuga. Venus is social media, Venus is electronics, Venus is computers, Venus is fashion, Venus is modeling, Venus is मतलब जो आप कपड़े पहनते हैं, textile industry, therefore Venus is love, Venus, everything today is Venus, क्योंकि Venus था दैत्यों का राजा था, और जुपिटर था वो गुरु के गुरु, मतलब जितने भी ऋषि हैं उनके गुरु जुपिटर है, और जितने भी दैत्य राक्षस के गुरु शुक्राचार्य। तो बोथ ऑफ देम आर गुरुस। एंड रिमेंबर वन थिंग, रावण was a Brahman, was a very learned person, but हम उसको दैत्य बुलाते हैं। तो ये कभी मत सोचिए कि यू नो कि ये दोनों प्लैनेट्स अलग अलग हैं। ये दोनों प्लैनेट्स जो है, इनमें अपनी अपनी they have the strengths, but one planet has one approach to life, Venus has different approach to life. Venus is enjoy all your senses, मतलब हमको आंखें दी है तो सुंदर चीज देखने के लिए दी है, जो भी चीज दी है हमें सबको एंजॉय करने के लिए दी है। जुपिटर कहता है हर चीज को मध्यम रूप में, मिनिमम रूप में करो, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा उस चीज की लालसा ना। शुक्र कहता है करो, राहु कहता है और करो। तो जब शुक्र और राहु दोनों साथ है, दैट इज द पीरियड फ्रॉम जनवरी टू May 18, 2025. शुक्र राहु टुगेदर आर देयर, सो दिस इज आल्सो अ पीरियड वेयर यू नो इफ यू आर इन लव विद ईच अदर, योर लव विल बिकम इंटेंस। अगर वो लव अच्छा है तो इंटेंसली अच्छा हो जाएगा। अगर आप उस आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं
तो आप और बेवकूफ बनना शुरू कर देंगे। और किसी के you may like a girl, if your Jupiter and other planets are strong, you may say I like you, I love you, वो लड़की बोलेगी I don't love you, आप अलग हट जाओगे। But if your Rahu is strong and your Jupiter is weak, then you will say नहीं, मेरे को तो ये लड़की चाहिए, I need it. You will do something or the other to have that object. So that is what happens, is the difference between Jupiter and Venus. So during the conjunction of Venus and Rahu, you can use it anyway. इसमें ये पैसे कमाने का टाइम है, ठीक तरीके से भी, गलत तरीके से भी. It is also the time to enjoy all the luxuries of life, ठीक तरीके से, गलत तरीके से भी. So it's a time when you are going out more than required to do things. So this you have to see yourself, what is there in you and how you can control it. So the time is from January 28 to May 28, 110 days. If your Rahu and Venus are well placed, this is the time when you will get fame and power. दोनों चीज मिलेंगे. फेम को शुक्र राहु अगर दोनों अच्छे हैं आपके हॉरोस्कोप में, तो ये अरबपति करोड़पति के हॉरोस्कोप होते हैं. शनि और शुक्र अगर एक साथ होता है तो आदमी करोड़पति लखपति बनता ही है. राहु और शुक्र दोनों अच्छे एक साथ है, आदमी अमीर आदमी बनता ही है. तो ये प्लैनेट्स आज के प्लैनेट्स है, कलयुग के प्लैनेट्स. दिस इज हाउ यू हैव टू सी हाउ इज योर माइंडसेट इज देयर. सो यू कैन ऑलवेज चेंज योर माइंडसेट, कि जिसमें है कि शुक्र राहु आप देख रहे हो कि आपके मन में आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, उसको थोड़ा पॉजिटिव करके अगर आप वही चीज करेंगे, यू विल अटेन इट आल्सो. So this is how you have to train your mind during this period. But this is the period of Rahu Shukra, January 28 to May 18. Again, I repeat, depending on your horoscope, both the planets are strong. It will give you power and fame. From January 28 to May 31, 2025 is a time when Venus is exaltation. Venus exalted भी है. Venus exalted means Venus अपने उच्च के घर में बैठा हुआ. तो वीनस जब उच्च के घर में बैठता है तो इट वांट्स टू एंजॉय लाइफ. अच्छा, वीनस उच्च कहाँ होता है? जुपिटर के घर में जाकर, जुपिटर के ऑर्बिट में जाकर. तो इसमें दो चीजें होती हैं. वीनस उच्च के घर में होते हैं, या तो आपके बुद्धि को बुद्धा बना देता है, मतलब आप इतना ऐसे स्पिरिचुअल हो जाते हैं कि आपकी जो बुद्धि होती है बुद्धा भगवान थे, बुद्धा के समान हो जाएगी. या आप इतना करेंगे कि आप कहेंगे एंजॉय लाइफ, एंड जो बाहर जाने की लालसा रहेगी, पैसा कमाने की लालसा रहेगी, पार्टनरशिप की लालसा रहेगी. तो ये सब चीजें आपके जून 28 टू May 31, 123 दिन का टाइम है, जो आपको लालसा देंगे इन सब चीजों के लिए. तो अब दिस इज व्हाट इज द इंडिकेशंस ऑफ द ट्रांजिट्स. Now you have to see how you balance. If you make what I have read, what I told you, अगर आप इसका चार्ट बनाएंगे, आप जुपिटर को देखिए जो एक्सपैंड कर रहा है आपको चीजें देने की. जुपिटर आपको देता है ये सब चीजें आपके पास है. मार्स बोलता है क्या क्या चीजें आप उनको अब अचीव कर सकते हैं. सैटर्न आपको बताता है कि किस तरह चलिए आप. शुक्र राहु बताते हैं कि go ahead, enjoy life the way you want to. So all this you have to see in your own way. And these transits which I've told you, आपको बता रहे हैं which way you can go. What are they? I've only gone till May, because after May we will make another video. So I've always told you कि May तक क्या है आपका. तो इसके अंदर जुपिटर कहीं अच्छा है. जब जुपिटर अच्छा है तब शुक्र राहु भी आपका अच्छा है. That is the time make money. When your Mars is negative, but there is a conjunction happening of Sun and Mercury, which gives an impetus to Mars, आप उस टाइम एक्शन लीजिए. So that is how, if you just make a chart of what I've told you and think about it in the right way, you can plan your 6 months in a very good way. And this is the time to plan. However, how much you will get, एक रिक्शा वाला है, उसकी हॉरोस्कोप बहुत अच्छी है, हम कहते हैं बहुत बढ़िया हॉरोस्कोप है.
तो वो रिक्शा वाला ऑटो रिक्शा वाला बन जाता है। उसी टाइम एक आदमी पैदा हुआ है, वो खरपति भी बन जाता है, मगर दोनों बढ़ते हैं। सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू वेयर यू आर, व्हाट यू आर थिंकिंग एंड हाउ टू प्लान योरसेल्फ डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजिट्स। और मैंने आपको बता दिया हर ट्रांजिट का क्या फायदा है, और उनके दिन भी बताती हैं, टाइम। सो इफ यू राइट देम डाउन प्रॉपरली, गिविंग इंपॉर्टेंस टू जुपिटर एंड मार्स and to Venus and Rahu, you will be able to plan your 6 months in a very good and productive way. And of course, if you want, you have any query, any consultation, my mobile number is 9818733000. It will be also there down in the strip. You can also go to my website shankarstudy.com. I am also come out with the book which is about Rahu, and it talks about हर घंटे में राहु आपको किस तरह इम्पैक्ट करता है। As a planet of Yam, Rahu is Yama. In a way, it is Yama because it is an agent of Shani. So I have come out with the book of Rahu, which is available in Prabhat publication. It is for those who understand astrology deeply. It is also available on Amazon, and it is also available with Prabhat publication. It's a book which I have done a lot of research and written. If you want that book, you can also write to me. I will tell Prabhat Publication to send you, or you can take it from Amazon. Prabhat Publication is a very big publisher, which is there. Prabhat Prakashan, Prabhat Publication, it's got all of them. So you can take it from there, or you can order it from there. It is also available on Amazon. Very good book which has a lot of research which I have done on Rahu. So you can read that. Plus you have any query, 9818733000. That's with this I end my video. Thanks. Bye for now.